خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت بھی پیش کرنا ہے. وہ ہماری امی جان ہے، ام المومنین ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے پہلی بیوی. حضور علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ اگر کسی کو چاہا ہے اور کسی سے محبت کی ہے تو وہ ام المومنین امی جان خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. ماں خدیجہ جو تھی وہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، اور 2 مرتبہ بیوہ ہونے کے بعد ماں خدیجہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کبھی بھی اب کسی مرد سے نکاح نہیں کرے گی، کیونکہ وہ 2 شوہروں کے جنازے پر رو چکی تھی. تو ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑے بڑے مکہ کے رئیسوں نے، بڑے بڑے سرداروں نے جو ہے وہ پیشکش کی کہ خدیجہ ہم تیرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ خدیجہ ملکہ عرب کہلاتی تھی، پورے عرب کی ملکہ، کیونکہ پورے مکے میں اور عرب میں خدیجہ سے زیادہ کوئی مالدار نہیں تھا. خدیجہ اتنی مالدار عورت تھی، اور سرداران قریش یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے خدیجہ کے ساتھ رشتہ ہو جائے، نکاح ہو جائے تو ہماری عزت بڑھ جائے گی. اور ظاہر سی بات ہے چونکہ بیوی کا مال جو ہے وہ شوہر کے قبضے میں ہی آ جاتا ہے. حالانکہ بیوی کے مال کا مالک شوہر نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ وہ زمانے جہالت تھا تو لوگوں نے مال کی لالچ میں بھی خدیجہ کو پیغام دیے، لیکن خدیجہ نے کسی کو جو ہے وہ ہاں نہیں کہا. ماں خدیجہ سب کو بڑی بے مروتی کے ساتھ، کسی کی مروت کیے بغیر نہ فرما دیتی تھی کہ مجھے نکاح نہیں کرنا ہے. اور خدیجہ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، ان کے چچا تھے، اور خدیجہ جو ہے وہ اپنے ایک غلام زید بن حارثہ اور اپنے بچوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی تھی. غلام خدمت میں رہتا تھا اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی زندگی کی ساعتیں بڑی شان و شوکت کے ساتھ گزار رہی تھی. آپ کو حیرت ہوگی جو زمانے جاہلیت کہلاتا ہے، جاہلیت والا زمانہ، جس زمانے میں لوگ کعبے کا طواف ننگے ہو کر کرتے تھے، جس زمانے میں لوگ جو ہے وہ کعبے پہ بت رکھ کر پوجتے تھے، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس زمانے کے اندر طاہرہ اور طیبہ کے لقب سے جو ہے وہ پکاری جاتی تھی. جناب خدیجہ کو زمانے جاہلیت میں بھی پاک دامنی، عفت اور طہارت اور عظمت اور بزرگی کی وجہ سے لوگ طاہرہ کے لقب سے جانتے تھے. اب تک خدیجہ کا تعارف حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوا تھا. مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ میں نے سال گزشتہ جناب خدیجہ کے نکاح کی داستان بیان کی تھی یا نہیں کی تھی. میں غور کر رہا تھا آتے وقت کہ پتہ نہیں میں نے بیان کیا یا نہیں کیا، لیکن میں آج اس کو بیان کر دوں. لوگوں کو یہ اعتراض ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، بعض عیسائی اور یہودی مستشرقین جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کے ساتھ زبردستی نکاح کیا اور خدیجہ کے مال پر محمد کی نظر تھی. معاذ اللہ، وہ ظالم یہ کہہ کر حضور کی توہین کرتے ہیں. اور بعض مسلمان کہلانے والے وہ بھی اس غلط پروپیگنڈے کا شکار ہے کہ خدیجہ کے پاس حضور نے کئی لوگوں کو بھیجا اور خدیجہ کو تیار کیا کہ وہ نکاح کرے، بلکہ معاذ اللہ کچھ ظالموں نے اپنی کتابوں میں یہاں تک لکھا کہ خدیجہ کے باپ کو شراب پلا دی گئی اور شراب کے نشے میں جو ہے وہ خدیجہ کے باپ سے کہلوایا گیا کہ جاؤ میں خدیجہ کا نکاح کرتا ہوں. حالانکہ سیرت کی اکثر کتابیں اور معتبر کتابیں یہ کہتی ہے کہ خدیجہ کے والد جو ہے وہ بہت پہلے انتقال کر چکے تھے اور خدیجہ جو ہے وہ اپنی زندگی گزار رہی تھی. اور اس کے بعد حالات یہ تھے، بڑے بڑے قریش نے جو ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ سے کہا کہ وہ نکاح کرے، بلکہ یہ تک کہا خدیجہ ہم اپنا مال تجھے دیتے، تو جتنا مطالبہ کرے ہم اپنا مال تجھے دیتے ہیں، لیکن تو نکاح کر لے ہمارے ساتھ. جناب خدیجہ خود اتنی مالدار تھی اور چونکہ وہ خوبصورت تھی، ان کی ایک عزت تھی، ان کا ایک مقام تھا، ان کا ایک وقار تھا، ان کی عظمت تھی. تو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے سب کو نہ کہا، بڑے بڑے سرداروں کو نہ کہا، لیکن خدیجہ کی ایک سہیلی تھی جس کا نام نفیسہ تھا. خدیجہ نے نفیسہ سے کہا نفیسہ
میرا جو مال ہے اس پر ہر وقت لوگوں کی نظر رہتی ہے اور مکے کے سردار چاہتے ہیں کہ وہ میرا مال لوٹ کھائیں. جب میرا مال جاتا ہے میں جس کو بھی مقرر کرتی ہوں تو وہ میرے مال پر جو ہے وہ غلط نظر ڈالتا ہے اور میرے مال کو لوٹ کھاتا ہے اور پھر خیانت کرتا ہے. کوئی اس کا انتظام ہونا چاہیے. خدیجہ کی سہیلی نفیسہ بڑی ذہین عورت تھی اور خود خدیجہ بھی جو ہے پورے مکہ میں سب سے ذہین خاتون کہلاتی تھی. نفیسہ نے کہا ایک کام کر, جو ابو طالب ہے نا وہ مکے کا سرداروں میں سے ایک سردار ہے اور وہ آدمی کچھ سلجھا ہوا ہے, اس کی ذہانت اچھی ہے اور وہ کچھ شریف لگتا ہے, اس کی سوچ بھی اچھی ہے. ابو طالب کو بلا کر کے کچھ گفتگو کر, وہ تیرے مال کی حفاظت کا انتظام کر دیں گے. خدیجہ نے میرے نبی کے چچا حضرت ابو طالب کو بلوایا اور بلوا کر کے, چونکہ خدیجہ نے بلوایا اور وہ بہت مالدار تھی, شریف تھی, طیبہ طاہرہ کے لقب سے تھی اور ان کا تعلق بھی جو ہے وہ قریش سے تھا. اوپر جا کر پانچویں پشت میں, پانچویں اوپر دادا, پانچویں دادا پر حضور علیہ السلام کا سلسلہ نسب اور خدیجہ کا سلسلہ نسب جا کر کے مل جاتا ہے. اس اعتبار سے خدیجہ جو ہے وہ نسب کے اعتبار سے بھی اعلیٰ تھی اور ان کا شجرہ نسب جو ہے وہ جناب ابو طالب سے ملتا تھا, چونکہ ابو طالب کے والد جناب عبد المطلب تھے. تو جناب ابو طالب کو جب بلایا تو رشتہ داری بھی تھی اور چونکہ وہ مکے کے سردار بھی تھے تو ابو طالب پہنچے. پہنچنے کے بعد حضرت ابو طالب کو خدیجہ نے کہا, ابو طالب تو مکے کا سردار ہے, کیا تو بیوہ کی خبر نہیں لیتا؟ حالانکہ وہ مالدار ہیں, بہت سارے لوگوں کو اپنا مال دیتی ہے اور ان کے ذریعے سے جو ہے وہ تجارت کرتی ہے. ابو طالب کو کہا کہ ابو طالب تو ایک بیوہ کی خبر نہیں لیتا, دیکھ تو صحیح مکے والے میرا مال لوٹ کر کھانے کی کوشش کرتے ہیں, میرے مال پہ جو ہے وہ نظریں ڈالتے ہیں, میرے مال کی حفاظت کر اور کوئی ایسی تدبیر کر دو ابو طالب کہ میرا مال محفوظ ہو جائے. جناب ابو طالب نے فرمایا کہ ایک کام کر کہ میں مکے والوں کو راضی کرتا ہوں, جو لٹیرے ہیں نا تیرے مال کے, وہی تیرے مال کی حفاظت اور محافظت کریں گے. اور اس کے بعد جناب ابو طالب نکلے اور جا کر کے کعبے کے صحن میں جو مکے کے لوگ بیٹھے تھے اس میں کچھ گنڈے قسم کے لوگ بھی تھے, ان کو بھی بلایا اور بلا کر کے کہا کہ کیا میں تم کو مالدار ہونے کا مشورہ نہ دوں, کیا میں ایسا نسخہ نہ بتاؤں جس سے تم مالدار ہو جاؤ؟ تو جناب ابو طالب کو انہوں نے بہت شوق سے کہا, ابو طالب ضرور بتاؤ کہ ہم کیسے مالدار ہو سکتے ہیں. تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ تم خدیجہ کے پارٹنر بن جاؤ, اس طرح سے تم مالدار ہو جاؤ گے. انہوں نے کہا ابو طالب ہماری غربت کا مذاق نہ اڑاؤ, کہاں خدیجہ ملکہ عرب کہلاتی ہے, ملکہ تجار کہلاتی ہے, اور کہاں ہم لوگ مفلس لوگ ہیں. تو کہا کہ میں نے یہ کب کہا کہ برابر برابر میں پارٹنر بن جاؤ, ایک کام کرو تھوڑا تھوڑا مال لگاؤ اور اپنے مال کے حساب سے پرسنٹ کے اعتبار سے واپس لے لینا. یہ جو میں روایت پیش کر رہا ہوں سیرت کی اکثر کتابوں کا نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, اور جن پر جرح کی گئی ہے میں ان روایتوں کو آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا ہوں, بلکہ یہ سب کا گلدستہ آپ کی خدمت میں, چونکہ الگ الگ روایتیں پیش کرنے کا یہاں وقت نہیں ہے. تو جناب ابو طالب نے کہا کہ ایک کام کرو, کوئی ایک بکری دے دو, کوئی ایک اونٹ دے دو, ایک گائے دے دو, اور اس طریقے سے اپنا مال لگاؤ. جب مال واپس آئے گا نفع لے کر تو پھر تم اپنے جس نے جو لگایا ہے اس کے مطابق لے لینا. اب یہ ہوا کہ جب مکہ والوں نے اپنا مال خدیجہ کے ساتھ لگایا تو پھر وہ یہ کہنے لگے اب یہ خدیجہ کا مال نہیں ہے, یہ مال اپنا ہے, اب اس پر جو نظر اٹھائے گا ہم اس کی آنکھیں پھاڑ ڈالیں گے, ہم اس کو قتل کر دیں گے. تو اس طرح خدیجہ مسکرا کر حضرت ابو طالب سے کہتی ہے, ابو طالب تو نے میرا مال تو مکے تک محفوظ کر دیا, لیکن میرا مال شام جاتا ہے, بصرہ جاتا ہے, یمن جاتا ہے, وہاں میرے مال کی حفاظت کون کرے گا؟ اب اس کے لیے بھی کوئی انتظام کر دو. تو جناب ابو طالب نے کہا کہ خدیجہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں, میری جو بس میں اور مرضی میں تھا میں نے وہ کر دیا, اب شام تک تیرے مال کی حفاظت کرنے میں تو نہیں جا سکتا, میں بوڑھا آدمی وہ سفر نہیں کر سکتا, یمن تک نہیں جا سکتا, بصرہ تک نہیں جا سکتا, میں کیسے تیرے مال کی حفاظت کروں گا؟ تو خدیجہ کی زبان پر آ گیا, میں نے سنا ہے کہ تیرا ایک بھتیجا ہے اس کا نام محمد ہے اور وہ بہت پاک دامن ہے, وہ دیانت دار ہے, وہ امانت دار ہے, بڑا نیک ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, غریبوں کا غمخوار ہے, یتیموں کا ماوا ہے, مفلسوں کی مدد کرنے والا ہے, میں نے سنا ہے کہ پورے مکے میں اس جیسا کوئی نہیں ہے, کیا تو اپنے بھتیجے کو نہیں لگا دے گا؟ ابو طالب, ابو طالب تم نہ جاؤ, اپنے بھتیجے کو لگا دو. تو ابو طالب کی زبان سے نکلا, خدیجہ میرا بھتیجا محمد بہت باغیرت ہے, وہ کہیں مزدوری کرنے نہیں جاتا, میرے خاندان میں کسی بھی فرد نے مزدوری نہیں کی ہے, اس لیے وہ محمد بھی مزدوری کرنے کہیں نہیں جائے گا اور وہ انکار کر دے گا. خدیجہ نے
ने कहा कुछ तो करें और मेरी तरफ से गुफ्तगू करें। कहाँ है वो लोग जो कहते हैं कि हुजूर ने खुद भेजा? ये खदीजा है, कहती है कि मैंने सुना है। अभी कोई रिश्ते का मामला नहीं है, अभी कोई रिश्ते का मामला नहीं है, कोई तसव्वुर भी नहीं है, कोई ख्याल भी नहीं है, अभी तिजारती मामलात है। और खदीजा की सहेली नफीसा ने कहा है कि अबू तालिब का भतीजा मोहम्मद बहुत नेक है और वो बहुत पाक दामन और पारसा दुनिया उनको मोहम्मद सादिक अमीन के नाम से जानती है, वो सच्चा और अमानतदार है। हालांकि अभी तक खदीजा ने मेरे हुजूर को देखा नहीं, अभी तक मुलाकात नहीं हुई है और हुजूर ने खदीजा को नहीं देखा है। ये बात आवारा जहन वालों को अजीब लगेगी कि एक शहर में रह के कैसे नहीं देखते, लेकिन जो निगाहों की मुहाफिजत करने वाले लोग उनको पता होता है पड़ोस में कितनी बच्चियां पल रही है नहीं मालूम होता है। जो नेक लोग हैं उनका हाल ये होता है, लेकिन जो आवारा हो, जो 12 घाट का पानी पीते हैं, उन्हें पूरा पता है कि कौन कहां बसता है और कौन कहां रहता है। तो ये हालात है लोगों के, लेकिन जो पाकदामन लोग हैं उन्हें पता नहीं होता कि पड़ोस में, अल्लाह अकबर, उनकी पाकदामनी का आलम ये होता है कि पड़ोस तो पड़ोस है, वो घरों की भाभियों को भी कभी नजर भर करके नहीं देखते, ये उनका आलम है। तो जनाब खदीजा को कभी मेरे रसूल ने नहीं देखा, हालांकि 25 साल की उम्र हो गई और खदीजा ने भी मेरे हुजूर को नहीं देखा, क्योंकि खदीजा ताहिरा कहलाती है और मुस्तफा सादिकुल वादुल अमीन कहलाते हैं। खदीजा 2 बार बेवा हो चुकी है, लेकिन उस जाहिलियत के जमाने में भी उनकी मिसल कोई औरत मक्के में जो है अल्लाह अकबर देखने में नहीं आती। अल्लाह अकबर। खदीजतुल कुबरा ने कहा कि मोहम्मद से बात तो करो अबू तालिब। अबू तालिब कहते हैं वो तैयार नहीं होगा, लेकिन मैं बात करता हूं क्योंकि मैं उसकी कमजोरी जानता हूं, मैं उसकी कमजोरी को सामने रखकर बात करूंगा। हर आदमी की कुछ ना कुछ कमजोरी होती है, बात मनवाने के लिए वो पेश करना होता है। वो क्या कमजोरी है मेरे नबी की, अब जरा वो भी देख लें आप। हालांकि मेरा नबी कमजोर नहीं है, लेकिन कमजोरी किस चीज को कहा जा रहा है? खदीजा की बात लेकर हुजूर तक अबू तालिब पहुंचे का भतीजे, मैं भी गरीब आदमी हूं, मुफलिसी है, चाहता हूं कि तेरा घर बसा दूं, और ये गुर्बत रहेगी तो शादी तेरी कैसे होगी? एक काम करो, खदीजा बहुत मालदार औरत है और वो ये कहती है कि अगर तुम उसके माल को लेकर के मुल्क शाम गए तो वो लोगों को जितना देते उसका डबल तुमको देगी। मेरे सरकार ने अबू तालिब का चेहरा देखा, मगर चचा मैं तो मजदूरी करने नहीं जाना चाहता। अब हुजूर अलैहिस्सलाम की जिस कमजोरी की तरफ इशारा किया था, मैं तो यकीनन उसको कमजोरी नहीं अपने नबी की खूबी मानता हूं, क्योंकि अबू तालिब ने जब देखा कि हुजूर की बात कबूल नहीं कर रहे हैं कि मैं मजदूरी करने, अरे जो सारी कायनात का मालिक बनाकर भेजा गया वो मजदूरी करने कहां जाएगा? चचा से कहा मैं मजदूरी करने नहीं जाऊंगा। तो फौरन जनाब अबू तालिब ने कहा कि मगर खदीजा बेवा है और 2 बार बेवा हो चुकी है, और हुजूर अलैहिस्सलाम की इसी बात को वो कमजोरी कह रहे थे कि मोहम्मद सबका इनकार कर सकते हैं लेकिन किसी बेवा की मदद का इनकार नहीं कर सकते। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की जो कह रहे थे ना कि मैं उसकी कमजोरी जानता हूं, यही थी कि ये कभी बेवा की मदद का इनकार, और ये कमजोरी नहीं है बल्कि ये तो खूबी है, मेरे मुस्तफा की खूबी। अल्लाह ने हर ऐब और कमजोरी से मेरे रसूल को पाक रखा है। तो बहरहाल खदीजा का जैसे जिक्र हुआ कि खदीजा बेवा है, बेवा, उसके माल को जो है वो लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, उसके माल में खयानत करते हैं। खदीजा ने बेवा होने के बाद, चूंकि उनका चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल ये तौरेत और इंजील के आलिम थे, तो खदीजा ने जा करके उनके पास तौरेत और इंजील को पढ़ लिया था। खदीजा के घर में तौरेत भी थी और इंजील भी थी, और खदीजा तौरेत पढ़ती थी, इंजील पढ़ती थी। अल्लाह अकबर। जब खदीजतुल कुबरा की ये बेवगी का मामला मेरे नबी के सामने आया तो जानते हैं क्या हुआ? खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की बात का मामला जब हुजूर ने सुना कि वो बेवा है, आका अलैहिस्सलाम ने गर्दन झुका लिया और चचा से कहा, चचा ठीक है आपकी मर्जी, मैं उस बेवा की जरूर मदद के लिए जाऊंगा। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम से जनाब अबू तालिब ने कहा कि जाओ, फला मोहल्ले के अंदर खदीजा नाम की औरत रहती है, जाकर उससे कहना कि चचा अबू तालिब
ने भेजा है और मैं तुझसे गुफ्तगू करने आया हूं, क्या करना है, कैसे करना है, मामलात कैसे तय करना है। अब जरा गौर से और ध्यान से सुनो, ये मेरे नबी की और खदीजा की पहली मुलाकात है, आकाए करीम की और खदीजा की पहली मुलाकात है। हुजूर के दिल में कोई ख्याल नहीं, कोई तसव्वुर नहीं, कोई तखय्युल नहीं, शादी का कोई जिक्र नहीं, निकाह की कोई बात नहीं, लेकिन खदीजा जो है वो चंद दिनों पहले एक ख्वाब देख चुकी है। ख्वाब ये है खदीजा का, जब बेवा हो गई थी दूसरी मर्तबा, एक चांद आसमान से उतरा और खदीजा की गोद में आया और खदीजा के दोनों हाथों से उस चांद की रोशनी शुआएं निकलने लगी। तो खदीजा ने मुल्क के शाम में एक राहिब रहता था, उसका नाम बुहैरा राहिब था, उसके पास खत लिखा और भेजवाया कि मैंने ऐसा ख्वाब देखा है। तो उसने खत का जवाब दिया, खदीजा आखिरी नबी पैदा हो चुका है और तेरा ख्वाब ये बशारत देता है कि तू आखिरी नबी की बीवी बनेगी और तू उस पर सबसे पहले ईमान लाएगी। तो खदीजा का एक तसव्वुर था, मक्के के इतने बिगड़े माहौल में नबी कौन हो सकता है, जो लोगों का हाल यह है कि माओ से जिना करते हैं, नंगे होकर तवाफ करते हैं, बुतों की पूजा करते हैं, माल लेकर खा जाते हैं, हड़प कर जाते हैं और इनके नजदीक ये ऐब नहीं बल्कि हुनर है, इनमें कौन अल्लाह का नबी हो सकता है। लेकिन खदीजतुल कुबरा का ख्याल अभी मेरे मुस्तफा तक न गया था। अब ये पहली मुलाकात थी खदीजा की और मेरे रसूल की। क्या हुआ, आज जनाब खदीजा के शबे विसाल के मौके पे दिल के कानों से सुने, मेरी माएँ और बहनें बच्चियां भी सुन रही है तो सुने और अपनी अम्मी जान की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करे कि वो हमारी कैसी माँ थी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब के कहने पर जनाब खदीजा के घर गए। अम्मा जान खदीजा कहती है कि मैं अपने घर में काम में मसरूफ थी, मेरा चेहरा जो है वो दरवाजे की तरफ पीठ थी और दीवार की तरफ मेरा चेहरा था और दिन का वक्त था, लेकिन मेरा दरवाजा ऐसी तरफ खुलता था जिधर से ना सूरज गुजरता था ना आता था। यानी कि जैसे हमारा दरवाजा मस्जिद का खुलता है कि उधर से सूरज का आना जाना नहीं है, सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में डूब जाता है। तो हमारी इस मस्जिद के दरवाजे से कभी भी शुआएं अंदर नहीं आती। तो जनाब खदीजा कहती है मेरा दरवाजा इसी सिमत में था कि कभी सूरज की शुआएं उस तरफ से आ नहीं सकती थी। मेरी पीठ जो है वो दरवाजे की तरफ थी और चेहरा दीवार की तरफ था। अचानक मैंने देखा कि मेरे घर की दीवार पर सूरज की शुआएं पड़ने लगी। मैं दंग रह गई कि आखिर सूरज की शुआएं मेरे घर की दीवार पर कैसे पड़ती है, क्योंकि मेरे घर का दरवाजा ऐसी तरफ खुलता है कि दीवार पर शुआएं पड़ ही नहीं सकती। मैं हैरत जदा रह गई, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि ये कायनात का निजाम बदल कैसे गया कि मेरी दीवार पर सूरज की शुआएं पड़ती है। जब मैंने पलट करके देखा तो अल्लाह अकबर, दरवाजे पे पर्दा पड़ा था, बारीक और पतला का पर्दा, लेकिन जब मैंने मुड़ करके देखा तो वो सूरज आसमान का सूरज नहीं था, वो अरब का सूरज मोहम्मद थे जिनके चेहरे की शुआएं निकलकर मेरे दरवाजे पे पड़ती थी। जब मैंने पलट करके देखा तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। या अल्लाह, ये इंसान है, ये आसमान का फरिश्ता है जो मेरे दरवाजे पे आके खड़ा हो गया है। जनाबे खदीजा कहती है जब मैंने पलट कर हैरत से देखा कि इतना खूबसूरत इंसान भी कोई मक्के में है। उसने मुझसे कहा खदीजा से मुझे बात करनी है। उसका लबो लहजा इतना हसीन था, उसके लबो लहजे में इतनी चाशनी थी, यूं लगता था कि ये मक्का के बिगड़े हुए माहौल का इंसान नहीं, ये तो अर्श नशीन है जो उतर आया है जमीन पर। मैंने पूछा आप कौन है, पर्दे के पीछे से पूछा तो उसने नजरें झुका के कहा मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह हूं, मेरे चचा अबू तालिब ने मुझे भेजा है कि मैं तुझसे बात करूं। तुमने कहा था कि मैं तेरा सामान लेकर के जाऊं और बेचू फरोख्त करूं। खदीजा ने कहा हाँ, मेरा सामान मुल्क शाम ले जाना है, लेकिन दुगना मैं तुम्हें दूंगी जितना देती हूं, लोग मेरा माल खा जाते हैं, ले जाओगे। हुजूर ने कहा चचा से बात हो गई है, आप जैसा कहें। कहा ठीक है, कल आना और काफिला रवाना कर दिया जाए। हुजूर चले गए। जब हुजूर गए तो खदीजा के नजरों में वो चेहरा फिरता रहा, आंखें ऐसी है, भवें ऐसी है, लब ऐसे हैं, जबान ऐसी है। खदीजा ने तौरेत खोला पढ़ने के लिए, खदीजा ने तौरेत खोला पढ़ने के लिए,
تو उसमें वो बाब निकला जिसमें नबी आखिरुज़्ज़मान की सिफत बयान की गई थी। उसमें आंखें पड़ती तो वो पर्दे के पीछे खड़े होने वाला मोहम्मद की आंखें याद आ जाती, भवें पड़ती तो मेरे मुस्तफ़ा की भवें सामने आती। क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम का हुस्न बहुत ज्यादा था, लेकिन हुजूर का एक मोजज़ा ये भी था कि हुजूर का हुस्न देखकर कभी कोई औरत हुजूर अलैहिस्सलाम से वो मोहब्बत नहीं करती थी जो आम तौर पे नाजायज मोहब्बतें होती है। ये हुजूर का मोजज़ा है कि हुजूर के हुस्न को देखकर कभी कोई औरत जो है वो नाजायज मोहब्बत का शिकार नहीं हुई, कोई औरत। इसीलिए हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो हंसी क्या जो फितने उठा कर चले, हां हंसी तुम हो फितने मिटा कर चले। जिसके हुस्न से फितने उठते हों। बहरहाल तो खदीजा को हैरत हुई। अब कल का इंतजार है कि कल काफिला रवाना होगा, मक्के वालों का माल भी उसके अंदर माल में मिला दिया गया, जैसा कि आप सुन चुके हैं। अब कल काफिले की रवानगी, अबू जहल भी काफिले में है, उतबा वगैरह भी काफिले में जाने वाले हैं, और खदीजा का पूरा माल किसके हाथ है? हुजूर के हाथ है। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी जाने वाले हैं काफिले में, लेकिन अभी अबू बकर है, अभी सिद्दीक नहीं हुए, अभी सिद्दीक नहीं कहलाए, क्योंकि अबू बकर की उम्र भी अभी छोटी है, इब्तिदाई जवानी है। तकरीबन जनाब अबू बकर सिद्दीक की उम्र 23 से कुछ कम ज्यादा होगी बस, और हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र 25 साल की, यानी कड़ियल जवानी है। काफिला तैयार हो रहा है, माल बांधा जा रहा है, ऊंटों पे रखा जा रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। खदीजा ने अब देखा, कल पढ़ चुकी थी, अब तौरेत निकाला और पर्दे के पीछे से हुजूर का चेहरा देखती है तो जो लिखा इधर है वही उधर है। हैरान हो गई, वो जो ख्वाब आया था कि वो चांद उतर आया है, ये वही चांद है। अब खदीजा कहती है, मेरा होने वाला शौहर तो यही है, ये है असल दास्तान, ये है असल के हुजूर ने पैगाम भेजा। हुजूर के दिल में तो, दिमाग में तो अभी बज़ाहिर कोई ख्याल ही नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम तो खदीजा का माल बिछवाने के लिए आ रहे हैं और ले जाने के लिए आ रहे हैं। माल तैयार हो गया। खदीजा ने मैसरा अपने गुलाम को, सबसे ज्यादा मोतबर और मोतबर गुलाम मैसरा था, मैसरा का मैसरा, देख अब तक जब मैंने तुझे भेजा तो हमेशा यही कह करके भेजा कि माल का ख्याल रखना, लेकिन मैसरा आज मैं तुझे माल के ख्याल की बात नहीं करती। मुझे बहुत माल दिया अल्लाह ने, बहुत दौलत दी अल्लाह ने, आज तुझे जाना है सफर में मोहम्मद के साथ, अबू तालिब के भतीजे के साथ, लेकिन याद रख माल पे तवज्जो मत करना, तवज्जो मोहम्मद पे करना, ख्याल मोहम्मद पे करना। मोहम्मद उठे तो देखना, बैठे तो देखना, लेटे तो देखना, सोए तो देखना, जागे तो देखना, कारोबार करे तो देखना, गुस्ल करे तो अंदाजे गुस्ल को देखना, ठहरे तो ठहरने के अंदाज को देखना, एक एक चीज देखना मोहम्मद की, और इतना नोट करना कि उसके ऐब कितने हैं, उसमें ऐब कहां कहां है, कितने ऐब उसमें है, कितनी बुराइयां उसमें है। यारो जिससे तिजारत की जाती है उस पे ख्याल नहीं किया जाता, ख्याल माल का किया जाता है। लेकिन खदीजा जो तिजारत के लिए माल भेज रही है वो सिर्फ तिजारत के लिए नहीं, आज खदीजा को अपनी जिंदगी का फैसला करना है। और उसके बाद खदीजा ने कहा कि ए मैसरा, जब ये माल, जब काफिला चले तो यहां से तो मैं मजदूरों की तरह मोहम्मद को ऊंट दूंगी, लेकिन जब मक्के की सरहद से बाहर निकले ना तो वो मजदूरों वाला ऊंट मोहम्मद से ले लेना, और वो फरबा और सजा हुआ ऊंट जो जिस पे आका बैठते हैं वो मोहम्मद को दे देना। और उसके बाद मैसरा से कहा, मैसरा अगर तूने मोहम्मद का ख्याल रखा और सच्ची सच्ची रिपोर्ट लाया और सही रिपोर्ट लाया तो मैं तुझे आजाद कर दूंगी, और मेरे काफिले में जितना मुनाफा होगा उसका आधा तुझे दे दूंगी, तू माला माल हो जाएगा। अब मैसरा मेरे हुजूर के पीछे पीछे चलने लगा। अबू जहल भी साथ है, उतबा भी साथ है, अबू बकर भी साथ है, अभी ये सब बहुत मक्के के बहुत से ताजिर साथ हैं, साथ साथ जा रहे। मैसरा उतरा और आकाओं वाला ऊंट दे दिया। तो अबू जहल को हसद हुजूर के हुस्न पर था, खूबसूरती पर था। तो अबू जहल मैसरा से कहता है, मैसरा ये यतीम है, मोहम्मद कम उम्र है, इससे मेहनत का काम ले ताकि
इसको मेहनत की आदत पड़े। उसने कहा अबू जहल मैं तेरा गुलाम नहीं हूं, मेरा नाम मैसरा है, मैं खदीजा का गुलाम हूं और खदीजा ने मुझे जो कहा है मैं वही करूंगा, मैं तेरे कहने पे अमल नहीं करूंगा, मैं अपनी आकाजादी के कहने पे, अपनी आका के कहने पे अमल करूंगा। इस तरह चुप करवा दिया उसको और उसके बाद अपना ऊंट दे दिया। हुजूर ऊंट पर बैठे हैं। अब ऊंट पर बैठे तो मैसरा देखता है अजीब है ये मुस्तफा, अजीब है ये मोहम्मद, जब ये चलते हैं तो चलते हुए बादल इनके सर पे साया करता है। सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, लेकिन याद रखो जिनके मुकद्दर में बदबख्ती लिखी है ना, अल्लाह ये सारे हुस्न और खूबसूरती छुपा लेता है। किसी ने कहा है कि अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, गुस्ताख को महबूब दिखाए नहीं जाते। कल इंशाअल्लाह हम आपके सामने सूरह यूसुफ की तफसीर जब बयान करेंगे ना हर साल की तरह, तो इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। कल सूरह यूसुफ आने वाली है। हालांकि हम हर साल बदल बदल कर पेश कर रहे हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं सूरह यूसुफ की तफसीर बयान न करूं और लोगों के फोन और फरमाइशें आने लगती है कि सूरह यूसुफ छूटना नहीं चाहिए। तो हमने इंशाअल्लाह कुछ नई रिवायतें भी इस साल शामिल करनी है और आपकी लज्जत ईमान और बढ़ेगी इंशाअल्लाह। तो बस इतना है, कल आप इंशाअल्लाह सुनेंगे कि हुस्न अल्लाह ताला गुस्ताखों से छुपा लेता है। तो ये सब देख रहे हैं कि बादल साया कर रहा है, गर्द उड़ती है, तो हुजूर के कपड़े मैले नहीं होते हैं, हुजूर के जिस्म पे मक्खी नहीं बैठती है। अभी ऐलान नबूवत नहीं किया, लेकिन ये सारी निशानियां दिख रही है। और उसके बाद सब दंग है। मैसरा का कहना है, मैसरा बयान करते हैं कि काफले में चलते चलते दो ऊंट थक करके बैठ गए। मैसरा ने आकर के कहा मोहम्मद, क्योंकि अभी उसको खुद को पता नहीं कि ये नबी है, पैगंबर है, किसी को कुछ मालूम नहीं। हुजूर 25 साल की उम्र में है, ऐलान नबूवत नहीं किया है। तो मैसरा आकर के कहता है मोहम्मद, दोनों ऊंट थक करके बैठ गए। तब अबू जहल कहता है ये क्या कर लेंगे, वो थक करके बैठ गए तो उठा उनकी दुम पकड़ के, कहा दुम पील पील करके थक गया, लेकिन वो ऊंट उठते नहीं। आप जानते हैं जब जानवर बैठ जाते हैं थक करके, हमें बकरीद के मौके पर इज्तिमाई कुर्बानी के टाइम इसका बहुत अच्छी से तजर्बा है कि जब जानवर बैठ जाए ना तो वो मौलवी भी नहीं देखता, मुफ्ती भी नहीं देखता, वो ना दाढ़ी देखता है ना पगड़ी देखता है। दुम पिलते रहिए लेकिन वो उठने तैयार ना हो, बैठा हो तो लेट जाता है और उसको फिर कोई उठा नहीं सकता सिवाय कुरैश बिरादरी वालों के, और कोई उसको उठा नहीं सकता। बल्कि वो थक जाए ना तो वो कसाइयों से भी नहीं उठता है। और उसके बाद फिर नौबत यहां तक आती भाई इसको उठाओ, ट्राली में डालो और लेकर के चलो। इस तरीके से जानवर जाते हैं। उसको कुरैश बिरादरी अपनी जबान में मातिल जानवर कहते हैं, ये उनकी इस्तिलाह है। यानी अब ये किसी से नहीं उठने वाला, ये उसको वो मातिल जानवर कहते हैं अपनी इस्तिलाह में। बहरहाल ये सब दीन की बरकतों से सब सीख गए हम लोग, उनकी इस्तिलाहात भी जानने लग गए, क्योंकि तकरीबन जो है वो 16 साल से कम बेश हम लोग इज्तिमाई कुर्बानी करते हैं। तो ये भी एक तजुर्बा अल्लाह ने दे दिया है। तो कहा कि अगर वो जानवर नहीं उठता तो उसकी दुम पकड़ करके पी लो। वो कहे मोहम्मद क्या कर लेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम के पास आए, हुजूर जमीन पे नीचे तशरीफ लाए ऊंट से, और उसके बाद जब उन ऊंट पर गए, उन ऊंटों के करीब गए तो क्या देखते हैं, जैसे उन्होंने मेरे नबी का चेहरा देखा हुजूर की ताजीम के लिए उठकर खड़े हो गए। मैसरा देखकर हैरान हो गया। हुजूर ने उनके चेहरे पे हाथ फेरा और कहा थकते क्यों हो, चलो। जब उन दोनों को कहा चलो तो वो दोनों ऊंट काफले के आगे आगे चलते थे। यूं लगता था कि जैसे बुराक जा रहा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये मंजर देख करके लोग दंग थे कि लोग इंसानों की बात नहीं मानते, ये मोहम्मद कैसा है, जानवर इसकी बात मानते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के ये सारे मनाजिर मैसरा ने देखा। उसके बाद जो है वो काफला गया तो एक दरख्त के नीचे हुजूर ने कयाम किया। मैसरा बयान करते हैं कि वो दरख्त तो सूखा था, खजूर का दरख्त था। जैसे हुजूर जा करके बैठे वो दरख्त हरा हो गया, उससे फल आने लगे, उससे फल आने लगे। हमने फल देखे। और उसके बाद जब और आगे बढ़े तो एक दरख्त के नीचे ऐसा हुआ कि हुजूर से पहले ही सब लोग काफले वाले जाकर के जमा हो गए और पूरी दरख्त का जो साया था उसको सबने घेर करके बैठ गए। अब साया नहीं बचा था। आखिरी में उतरकर जब हुजूर गए तो लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि जब दरख्त की टहनियां ने हुजूर को देखा तो बढ़कर हुजूर के सर पे साया कर दिया। ये मंजर भी हैरत अंगेज था। उसके बाद जो है सामने एक खानका थी, यानी खानका से मुराद एक राहिब का इबादत, उसकी इबादत गाह थी, उसको गिरजा कह लीजिए कि गिरजा था। वहां पर नस्तूरा नाम का एक राहिब रहता था। जैसे उसने काफले को ऊपर से देखा फौरन नीचे आ गया और नीचे आने के बाद सबके चेहरे देखा और उसके बाद मैसरा के पास गया। कहा तू मैसरा है? नस्तूरा ने कहा डायरेक्ट तू मैसरा है?
کہاں میں میسرا ہوں، یہ جو تیرے آقا ہے تیرے ساتھ وہ محمد ہیں؟ کہاں یہ محمد ہے، لیکن تجھے کیسے معلوم کہ میں میسرا یہ محمد ہے؟ کہاں یہ تم دونوں کے چہرے توریت کے اندر لکھے ہوئے ہیں، توریت کے اندر آیا ہے کہ میسرہ نام کا غلام محمد نام کے پیغمبر آخر الزمان کے ساتھ ملک شام کے لیے تجارت کے لیے جائے گا، وہ ان کے پیچھے پیچھے خدمت پہ مامور ہوگا۔ تو کہا یہ جو تیرے ساتھ ہے نا، یہ معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ اللہ کا آخری نبی ہے، یہ آخری نبی ہے، انہی پر اللہ نے نبوت ختم کر دی ہے۔ اس کے بعد کہا کیا تو ان کو میرے گرجا میں لا سکتا ہے؟ میسرہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں لے آتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کو کہا کہ وہ جو سامنے گرجا ہے، اگر آپ چلنا چاہیں محمد، آپ میرے دوست ہیں، میری بات آپ کاٹتے نہیں، چلیں تو صحیح۔ جب پہنچے وہاں تو اس کے گرجا میں جیسے ہی پہنچے تو نستورہ جو تھا اس کے پاس کئی تصویریں تھی، وہ پیٹی کھولتا تصویر دیکھتا ادھر رکھتا، پھر ایک تصویر نکالی، حضور کو دیکھا، وہ تصویر کو دیکھا تو میسرہ کہتا ہے بالکل ہو بہو حضور کی تصویر اس کے ہاتھ میں تھی۔ میں نے کہا یہ تو نے بنائی کہاں سے؟ تو کہا کہ چپ رہے، یہ میں نے نہیں بنائی ہے، یہ آسمانوں سے آئی ہے، تبرک کے طور پر جناب موسیٰ کو ملی تھی اور سلسلہ در سلسلہ یہ میرے پاس آئی ہے۔ کہا یہ دیکھ، یہ تصویر محمد کی آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نستورہ سے میسرہ ڈر گیا اور حضور کو لے کر کے جلدی سے وہاں سے نکلا۔ تو کہا میسرہ بھاگ نہیں، کاش کہ یہ اعلان نبوت کرے تب تک میں زندہ رہوں، لیکن ان کو گواہ بنا دے اور تو بھی گواہ ہو جا کہ میں ان پر ایمان لایا اور قیامت میں یہ میری شفاعت کریں گے۔ قبول کر لیے۔ حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ تبسم فرمایا اور کوئی جواب نہیں دیا، اور اس کے بعد پھر دونوں چل پڑے، قافلے میں آئے، قافلہ آگے بڑھے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ بصرہ پہنچے، ایک روایت میں آتا ہے ملک شام پہنچے، الگ الگ روایتیں، بہرحال بصرہ یا ملک شام جہاں بھی ہو صحیح۔ آقا علیہ السلام جو ہے وہ خرید و فروخت کر رہے تھے، اس میں ایک آدمی آیا حضور سے بحث کرنے لگا، بحث کرتے کرتے اس نے کہا کہ لات و حبل کی قسم آپ کھائیں۔ حضور علیہ السلام نے غصے سے کہا تجھ پہ افسوس ہے، مجھے مکے والوں کا سب سے بدترین اور نفرت والا جملہ یہی لگتا ہے، جب کوئی کہتا ہے لات و حبل کی قسم کھائے تو مجھے غصہ آتا ہے، لات و حبل پہ لعنت ہے، میں ان سے اتنی نفرت کرتا ہوں کہ جب میں ان کے قریب سے گزرتا ہوں تو اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہوں، میں لات و حبل کا ماننے والا نہیں ہوں، میں آسمانوں کے خالق اللہ کا ماننے والا ہوں۔ اس نے کہا اس کا مطلب تو اہل حرم سے؟ تو کہا ہاں۔ تو میسرہ کو کہتا ہے وہ آدمی کہ میں نے اس کو پہچان لیا، یہ آخری نبی ہے، اگر یہودیوں کو پتا چل گیا تو ہم ملک شام میں اس کو قتل کر دیں گے، جتنی جلدی ہو سکے اس کو لے کر کے جا۔ میسرہ کہتے ہیں جو مال مہینوں میں بکتا تھا وہ مال چند دنوں میں فروخت ہو گیا محمد کی برکت سے، اور جتنا جو ہے وہ نفع آتا تھا اس سے دگنا، بعض روایتوں میں 10 گنا، الگ الگ مورخین نے لکھا ہے، لیکن بہرحال کم سے کم دگنا لکھا گیا ہے۔ ہم وہ مال بیچ کر خوب منافع لے کر کے جب لوٹے تو رستے ہی بہت سی نشانیاں دیکھی، ابو جہل وغیرہ کو حسد ہو گیا کہ اتنی جلدی مال کیسے بک گیا، اور یہ سارے معاملات دیکھ کر کے اس کو بڑی تکلیف ہوئی۔ ابو بکر حضور علیہ السلام کے دوست تھے اور بڑی گہری دوستی تھی، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا لیکن دوستی بڑی گہری تھی، ساتھ ساتھ آتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ بھی دیکھ رہے تھے سارا منظر، متاثر ہو رہے تھے، حضور پہ فدا ہو رہے تھے۔ پھر یہ ہوا المختصر، یہ مختصر اختصار کر کے کہوں کہ یہ قافلہ مکے کے قریب پہنچا تو پہلے ہی میسرہ نے خط لکھ کر کے بھجوا دیا تھا کہ ہم آ رہے ہیں اور اتنا منافع ہوا ہے اور یہ ہوا ہے۔ تو جناب خدیجہ اپنی سہیلی نفیسہ کے ساتھ میں اپنے چھت پر بیٹھ کر وہ منظر دیکھنا چاہتی تھی جو قافلے کا آنے کا منظر تھا۔ قافلہ دور سے آ رہا تھا، کسی کا چہرہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون کون آ رہا ہے، لیکن ان سارے چہروں میں میرے نبی کا چہرہ ایسے روشن تھا جیسے بدلی کے اندر چاند چمکتا ہے۔ تو نفیسہ سے خدیجہ نے کہا خدیجہ سارے چہرے دھندلے ہیں لیکن یہ چہرہ ایک کس کا چمکتا ہے، کیا تو محسوس کر رہی ہے کون سا چہرہ چمک رہا ہے؟ تو نفیسہ نے کہا وہ چہرہ محمد کا ہے جو چمک رہا ہے۔ اور اس کے بعد جب قافلہ قریب آتا گیا
खदीजा उस चेहरे को तकती गई तो क्या देखा कि बादल साया करता है और मुस्तफा तशरीफ लाते हैं, आका तशरीफ लाते हैं। खदीजा हैरत से देख रही है वो मंजर। उसके बाद मेरे आका ने मैसरा से कहा, मैसरा जल्दी जा तू आगे, और आगे जाकर खदीजा को रिपोर्ट दे, काफले की सारी दास्तान सुना दे ताकि तेरी मालिका खुश हो जाए। जब खदीजा के पास मैसरा पहुंचा और मैसरा कहने लगा, आका मुबारक हो कि हमारा काफला आया और दुगना या 10 गुना मुनाफा लेकर के आया। तो खदीजा ने कहा, चुप कर मैसरा, खामोश रहे, मैं तुझसे ये नहीं सुनना चाहती कि हमारा काफला जो है वो कितना माल लेकर आया। मुझे यकीन है मैंने ऐसे अमीन को भेजा है कि वो यकीनन काफले के अंदर बरकतें ही बरकतें लेकर आएगा। मुझे तो मोहम्मद के ऐब सुनने ऐब, तू मुझे ये बता कि मोहम्मद में ऐब कितने हैं। जब खदीजा ने कहा कि मोहम्मद के ऐब बता कि ऐब कितने हैं, तो मैसरा ने जवाब दिया, है मेरी आका, मैंने तेरा नमक खाया है। अगर तू मोहम्मद के ऐब सुनना चाहती है तो सुन, जब मोहम्मद चलता है तो उसके सर पे बादल साया करता है। तो खदीजा ने कहा, ऐब बता मोहम्मद में ऐब क्या है। कहा, मैंने देखा पूरे सफर में उसके बदन पर कभी मक्खी नहीं बैठी। खदीजा ने कहा, मैं ऐब सुनना चाहती हूँ, ऐब क्या है। तो कहा, उसके बदन से पसीना निकलता है तो खुशबू निकलती है, उसके कपड़े कभी मैले नहीं होते, धूल से उसके कपड़े गर्द आलूद नहीं होते। खदीजा ने कहा, ऐब बता। तो कहा, खदीजा सुन, जब वो खुश्क दरख्तों के नीचे जाता है तो दरख्त हरे भरे होते हैं, उसी वक्त फल देने लगते हैं। नस्तूरा उस पर ईमान लाया, लातो बुल की कसम खाने वाला कहने वाला जो है वो उस पर ईमान लाने की बातें करता था। खदीजा ने कहा, ऐब बता, ऐब क्या है। तो वो सारी दास्तान पेश करके कहता है, खदीजा खुदा की इज्जत की कसम, मैं तेरा नमक हराम नहीं, लेकिन सुन, अगर तू मोहम्मद के ऐब सुनना चाहती है तो एक जुमला सुन ले। अगर तू मेरे एक हाथ पे चांद ला के रख दे और दूसरे हाथ पे सूरज ला के रख दे और फिर तू पूछ कि मोहम्मद में ऐब क्या है, तो मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं कि अल्लाह का वो एक बंदा ऐसा है जिसके अंदर अल्लाह ने ऐब पैदा ही नहीं किया। अगर ऐब हो तो बयान करूं, मोहम्मद बेऐब है, अल्लाह ने उनमें कोई ऐब पैदा नहीं किया, वो खूबी ही खूबियों वाला है। खदीजा ने मुस्कुरा के कहा, नफीसा अपना काम हो गया, नफीसा अपना काम हो गया। मैसरा से कहा, जा तू आजाद है। मैसरा से कहा, जा तू आजाद है, आधा माल तेरा है। मोहम्मद को लेकर हुजूर आए। नफीसा से कहा, नफीसा इनसे बात कर, क्या ये मुझसे निकाह करेंगे। अरब के सरदार खुद पैगाम देते हैं और खदीजा मेरे हुजूर को पैगाम दे रही है। हालांकि खदीजा बड़ी पाक दामन और इनकार कर चुकी है। अच्छा, अक्सर बाहया औरतें, तवज्जो आपकी, अक्सर बाहया औरतें खुद से किसी को निकाह का पैगाम नहीं देती, और खदीजा इतनी बाहया थी, इतनी बाहया कि ताहिरा तैयबा कहलाती थी उस जमाने में, जमाने जहालत में। लेकिन खुद से कहा, अल्लाह को खदीजा की अदा इतनी पसंद आई। देखो सब जगह गैरत बताना, लेकिन मेरे महबूब के मामले में कोई गैरत ना बताए। वहां खुद से जाओ, खुद से जाओ, खुद से गुलामी करो। तो खदीजा ने खुद से गुलामी की तो अल्लाह को अदा इतनी पसंद आई। खदीजा, तू इतनी बाहया और पारसा होकर सिर्फ मेरे महबूब के लिए तूने खुद से जो है वो पहल की, आज के बाद हम कानून बना देंगे। तूने पहल की ना, मेरे महबूब के लिए पहल की ना, कानून बन जाएगा आज के बाद। जब भी निकाह होगा, जब तक औरत इजाजत नहीं देगी उस वक्त तक निकाह नहीं हो सकता। आने वाला बड़ा होगा, वली होगा, मुफ्ती होगा, शेखुल हदीस कोई होगा आने वाला, वो है अपने जमाने का अल्लामतुद्दहर, लेकिन वो बेचारी अनपढ़ औरत जब तक नहीं कहेगी ना कि मैं फुला के साथ निकाह की इजाजत देती हूं, तब तक के निकाह नहीं होगा। पता चला एक औरत ने मुस्तफा की कनीजी की, अल्लाह ने सारी औरतों को इनाम अता कर दिया। खदीजा के सदके हर औरत ऊंची हो गई, बुलंद हो गई, मर्तबे वाली हो गई कि अब हर औरत इजाजत पर मौकूफ है। कोई हो, जब तक औरत इजाजत न दे निकाह नहीं हो सकता। काजी साहब पढ़ा दे तो भी नहीं होगा, कोई पढ़ा दे तो भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इजाजत यहां से लेना है। क्यों लेना है? खदीजा की अदा पसंद आ गई है।
खदीजा ने खुद से कहा नफीसा बात तो कर, अब बात की नफीसा ने। हुजूर आए, आदमी थक कर सफर से आएगा तो उसको आराम के लिए कहा जाता है, लेकिन यहाँ जल्दी इतनी है कि नफीसा कहती है भतीजे मोहम्मद तुम्हारी उम्र 25 साल की हो गई है, क्या तुम शादी नहीं करते? हुजूर ने कहा कि करना तो है, लेकिन इस वक्त मेरी माशी हालत जो है वो कमजोर है, मैं बीवी लाऊं तो रखूंगा कहाँ, मैं अपने चचा के घर रहता हूँ। नफीसा ने कहा अगर कोई खूबसूरत और मालदार औरत तुम्हें मिल जाए तो क्या तुम ना करोगे? हुजूर ने कहा लेकिन मैं इस वक्त इसका जो है वो बार नहीं उठा सकता। नफीसा ने कहा सारा इंतजाम मैं खुद कर दूंगी, बताओ तुम निकाह करोगे? हुजूर ने कहा किसके साथ? कौन औरत है जो मक्के में मेरे साथ निकाह के लिए तैयार होगी? नफीसा ने कहा कि खदीजा। हुजूर ने खदीजा? हाँ खदीजा। तो आका अलैहिस्सलाम के जुमले थे नफीसा शरीफों के रिश्ते इस तरह रास्तों में तय नहीं होते, मेरा सरपरस्त मेरा चचा अबू तालिब है, अगर मेरा रिश्ता तय करना है तो उससे जाके बात करो, हम रोड पे खड़े होकर के रिश्ता कैसे तय करें? ये हुजूर की शान है। उधर से ऑफर है और हुजूर कहते हैं कि खदीजा निकाह के लिए तैयार है, ऐसे शरीफों के रिश्ते रस्ते में तय नहीं होते। देखो 25 साल के रसूल हैं, अभी ऐलान नबूवत नहीं किया है, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम कौम को पैगाम दे रहे हैं कि शरीफों के रिश्ते रस्तों में तय नहीं होते। आजकल फोन पे रिश्ते तय होते हैं, पार्कों में तय होते हैं, इंटरनेट पे तय होते हैं, ये शरीफों की अलामत नहीं है, ये शरीफाना मिजाज नहीं है। वो अल्लाह के हबीब होकर अपने सरपरस्तों की तरफ, अपने बड़ों की तरफ, बज़ाहिर बड़े, बड़ों से मुराद हुजूर से तो कोई बड़ा हो ही नहीं सकता, चचा अल्लाह अकबर, आका अलैहिस्सलाम से मर्तबे में कोई बड़ा नहीं हो सकता, वो इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया। तो हुजूर ने कहा कि मेरे सरपरस्त मेरे चचा है, जाके उनसे बात करो। फिर उसके बाद नफीसा वहां गई और कहा अबू तालिब खदीजा की तरफ से ये पैगाम है कि मोहम्मद के साथ वो निकाह करना चाहती है। तो हज़रत अबू तालिब ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं मोहम्मद से बात करता हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसके बाद फिर वो रिश्ता तय हुआ। आपको पता है हुजूर ने कुर्बानी दी, हजरत खदीजा की कुर्बानी सर आंखों पर, लेकिन 25 साल का नौजवान और पूरे मक्के में सबसे खूबसूरत नौजवान 40 साल की औरत से निकाह के लिए तैयार होते हैं। क्यों? ताकि उम्मत को पैगाम दे दिया जाए, उम्मत को बता दिया जाए कि बेवा जो है वो बुरी नहीं होती, बेवा मनहूस नहीं होती। और उसके बाद अब ये हुआ कि हुजूर के निकाह की बात आई। अगर आप इजाजत दें तो मैं पेश कर दूं, वक्त हो चुका है, टाइम हो गया, इजाजत है आपकी? क्योंकि कल फिर हो सकता है कि वक्त होगा, क्योंकि सूरह यूसुफ भी आपने सुननी है। अब हुजूर के निकाह की बात आई। घर में कोई कीमती लिबास नहीं है, घर में कोई कीमती लिबास नहीं है कि हुजूर अलैहिस्सलाम पहने निकाह के लिए जाना है, खदीजा के घर जाना है। हजरत अबू तालिब रोने लगे कि आज मेरे भतीजे का निकाह है और कोई लिबास मेरे घर पे नहीं है। अबू बकर सिद्दीक आए, दोस्त तो थे ना, आए, कहने लगे कि ये घर में गम का माहौल क्यों है, गमी के हालात क्यों है? अबू तालिब ने कहा कि अबू बकर तुम्हारे दोस्त मोहम्मद का आज निकाह है और अब खदीजा के घर जाना है, घर में कपड़े नहीं है। अबू बकर सिद्दीक की कुर्बानी पहले दिन देखें, अभी हुजूर ने ऐलान नबूवत नहीं कहा कि जिस दिन अब्दुल मुत्तलिब दुनिया से जाने लगे थे तो अब्दुल मुत्तलिब ने मेरे पास अमानत रखी थी कि जिस दिन मेरा पोता मोहम्मद दूल्हा बनेगा उस दिन उसको ये कपड़े पहना देना। वो अमानत मेरे घर है और कुछ सोना भी मुझे दिया था, वो भी अमानत मेरे घर है, मैं ले आता हूं। हालांकि जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कोई अमानत नहीं दी थी, लेकिन अबू बकर सिद्दीक एहसान नहीं जताना चाहते थे हुजूर पर, इसलिए इस तरह की बात कह करके लाए और जानते थे अगर मैं डायरेक्ट दूंगा तो ये कबूल नहीं होगा, तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब के हवाले से दिया, लाकर कपड़े पेश कर दिए। हुजूर ने वो कपड़े पहने। अभी कपड़े हुजूर ने पहने ही थे कि खदीजा के घर से जोड़ा आ गया, लिबास आ गया और शाहाना लिबास था, क्योंकि खदीजा मलके अरब कहलाती थी, मलके तुजार कहलाती थी, आप जानते हैं। वो यमनी लिबास देखकर हुजूर ने कहा ये लिबास खदीजा से कह दे वापस ले लें, मैं अपने दोस्त अबू बकर का दिया हुआ लिबास पहनूंगा। कुर्बान जाए, हुजूर ने पहले दिन पहले निकाह पर
जिसका दिया वह लिबास पहना वो अबू बकर का लिबास था, सिद्दीक अकबर का लिबास था। बहरहाल सिद्दीक अकबर का लिबास पहने और चंद लोगों पे मुश्तमिल काफिला या उसको बारात कह लीजिए, मेरे नबी की बारात चली है। दाएं से अमीर हमजा है, बाएं से अबू बकर सिद्दीक हैं, ये दोनों इस तरफ चलते हैं, पीछे अब जनाब अबू तालिब हैं और दीगर कुछ लोग जनाब अब्बास वगैरह हैं। इस तरह से मेरे मुस्तफा की बारात जा रही है। अल्लाह का हबीब मेराज का दूल्हा दूल्हा बनकर जा रहा है, हबीब खुदा दूल्हा बना हुआ है। जरा सोचे ना कि दुनिया का एक मामूली सा नौजवान थोड़ा सा सफेद चमड़ी वाला हो, दूल्हा बनता है तो कितना खूबसूरत लगता है। हबीब खुदा जब दूल्हा बना होगा तो कैसा हसीन लग रहा होगा। हूरान जन्नत बढ़ बढ़ के बलाएं लेती होगी और जन्नत की हूरें जो है वो फूल निछावर करती होगी रहमत की। ऐसे में खदीजा का मकान आ गया, लेकिन खदीजा के यहाँ तो अजीब ताम झाम थी, अजीब जो है वो शान शौकत था। अल्लाह अकबर, घर सजा है उस जमाने के हिसाब से, सच्चे मोती गुलामों के हाथों में है और वो मेरे हुजूर के कदमों पे निसार कर रहे हैं। मलके अरब की शादी है, लेकिन किसके साथ? मालिक जन्नत के साथ है, मालिक कौनैन के साथ है, मुस्तफा करीम के साथ है। और उसके बाद जब बैठ गए तो जनाब खदीजा ने पर्दे के पीछे से कहा, मेरा वकील जो है वो मेरा चचा है अमर इब्ने असद और वो मेरा निकाह का वकील है। और मेरे हुजूर ने फिर कहा कि मेरा वकील अबू तालिब है। हजरत अबू तालिब मेरे हुजूर के वकील बने, अमर इब्ने असद जनाब खदीजा के वकील बने। अबू तालिब खड़े होकर उन्होंने खुतबा निकाह दिया और खुतबा निकाह दिया तो बड़ा अजीब रिक्कत अंगेज खुतबा। उन्होंने यूं कहा, सब खूबियां अल्लाह के लिए है जिसने हमें आले इब्राहिम में पैदा किया, इस्माइल की औलाद में पैदा किया, काबे का मुतवल्ली बनाया, मक्के की सरदारी अता की। और इसके बाद ये कहना है कि मैं अपने भतीजे मोहम्मद का निकाह जो है वो खदीजा के साथ करता हूं और 500 दीनार सोने के जो है वो मेहर मुकर्रर करता हूं। 500 सोने के दीनार मेहर मुकर्रर किए गए, तलाई हुई। उसके बाद जो है वो अमर खड़े हुए और उन्होंने कहा, खुतबा पढ़ा कि मैं अबू तालिब की तायद करता हूं और हम आले इब्राहिम में से, औलाद इस्माइल में से है, काबे के मुतवल्ली है। मैंने अपनी जो है वो बच्ची, अपने भाई की बेटी खदीजा का निकाह मोहम्मद के साथ कर दिया और हमने ये कबूल कर लिया। इस तरीके से फिर वो जब निकाह की कबूलियत हो गई, इसलिए कि आज बुनियाद रखी जा रही है आले मोहम्मद की। अहले बैत अतहार का गुल अब यहीं से खिलेगा, चमन यहीं से फूलेगा। आज फातिमा की माँ दुल्हन बनी है, आज फातिमा का बाप मोहम्मद दूल्हा बने हुए हैं। जरा सोचे कि कायनात का वो दिन कितनी खुशी का दिन होगा जिस दिन मुस्तफा दूल्हा बने थे। खदीजा 2 मरतबा बेवा होने वाली दुल्हन, वो बेवा दुल्हन बनी थी। अब ये हुआ कि खदीजा ने अबू तालिब से कहा, ए अबू तालिब, अगर आप पसंद फरमाए तो मैं मोहम्मद को अपने घर में रख लूं और वो मेरे घर रहें, और वो कबूल फरमा ले तो अब चूंकि वो मेरे शौहर हो गए, वो मेरे घर रहे। अबू तालिब ने बखुशी कबूल किया। खुशियों के आंसू हुजूर के चचा की आंखों में, चचियों की आंखों में, फूफियों की आंखों में कि हमारा भतीजा मोहम्मद अब जो है वो बड़ी शान की जिंदगी गुजारेगा। लेकिन मक्के के कुछ हासिदीन को ये पसंद ना आया तो मक्के में बातें होने लगी, मुफलिस शौहर की मालदार दुल्हन, मुफलिस शौहर की मालदार दुल्हन, मुफलिस शौहर की मालदार दुल्हन। जब ये बात जनाब खदीजा के कानों तक पहुंची कि मक्के के कुछ जालिम और गुंडागर्दी करने वाले मोहम्मद को ताना देते हैं कि मुफलिस शौहर की मालदार दुल्हन, किसी ने ऐसा भी देखा कि शौहर मुफलिस हो और दुल्हन मालदार हो, तो आपने पूरे मक्के वालों को दावत दी, मक्के के बड़े बड़े गुंडों को और जो है वो सरदारों को, सबको बुलाया। खदीजा का घर भर गया। खदीजा ने पुरतपाक इस्तकबाल करवाया और पुरतकल्लुफ दावत करवाई, ओट ज़बा किया और खूब खिलाया। जब वो खा चुके तो खदीजा ने पर्दे के पीछे से कहा, हालांकि अभी पर्दे का हुक्म नहीं आया है, लेकिन खदीजा अब भी पर्दादार औरत है, पर्दे के हुक्म से पहले पर्दादार औरत है। खदीजा ने पर्दे के पीछे से कहा, मेरे शौहर मोहम्मद को कहते हो कि मोहम्मद मुफलिस शौहर है और खदीजा मालदार दुल्हन है। सारा माल रख दिया। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, खदीजा के घर का जितना सोना था ना, तो मैं एक तरफ खड़ा था, हुजूर दूसरी तरफ खड़े थे। जब खदीजा ने सोने का ढेर लगाया तो मुझे हुजूर नजर नहीं आते थे,
इतना ज्यादा सोना था, गोया कि जितना माल घर में था सब बाहर किया और कहा, सुनो, तुम मेरे शौहर को मुफलिस कहते हो, आज के बाद ये पूरा माल मैंने मोहम्मद को दे दिया, मैंने हुजूर को दे दिया, मेरे सरताज को दे दिया। और कहा, अब मेरे मोहम्मद को मुफलिस न कहना, अब मुफलिस है तो खदीजा है, मोहम्मद मुफलिस नहीं है, मोहम्मद मालदार है। अब उसके बाद से उन्होंने जबान बदल दी, खदीजा मुफलिस, मोहम्मद मालदार। कहा, मुफलिसी का ताना मुझे गवारा है, मोहम्मद के लिए मुफलिसी का ताना गवारा नहीं। पता है फिर क्या हुआ? अल्लाह ने अपने हबीब से फरमाया, महबूब, अभी वही इनका सिलसिला शुरू नहीं हुआ है, लेकिन खुदा का हबीब खुदा से महवे कलाम रहता है, खुदा का हबीब खुदा से महवे। अल्लाह ने महबूब से, महबूब, खदीजा की अदा पसंद आ गई, खदीजा ने अपना पूरा माल तुझे देकर तुझसे मुफलिसी का ताना खत्म करवाया। अरे जिसने मेरे महबूब को पूरा माल दे दिया, हम उसका एहसान चुका देंगे, एहसान चुका देंगे, खदीजा को कुछ और देंगे, कुछ और देंगे, कुछ और देंगे। अर्ज किया, मौला क्या देगा? इतना सब कुछ खदीजा ने दे, इसको क्या दिया जाएगा? तो ऐलान हुआ, खदीजा के लिए जन्नत में मोतियों का महल होगा, और वो ऐसी जगह होगा जहां ना कोई शोर होगा, ना जहां गुल होगा। और खदीजा को अल्लाह ने सलाम फरमाया, खदीजा वो है जिसके लिए अर्श से खुदा सलाम करता है। फिर उसके बाद मुफलिसी, हुजूर अलैहिस्सलाम पर जो मुफलिसी का ताना था वो खत्म हुआ। अल्लाह फरमाता है कि फअम्मल यतीम फला तक़हर व अम्मस साइल फला तनहर। अल्लाह फरमाता है, महबूब, जब हमने तुझे यतीम पाया तो हमने तुझे अपनी आगोश रहमत में ले लिया, और जब हमने तुम्हें मुफलिस पाया तो तुम्हें गनी कर दिया। इसलिए जब कोई साइल आए तो उसको झिड़कना नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम अब माला माल हैं, हुजूर यतीमों की परवरिश करते हैं, गरीबों का ख्याल करते हैं, बेवाओं को अता करते हैं। लेकिन खदीजा है कि रात और दिन हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में लगी रहती है। आका अलैहिस्सलाम शादी के बाद जो है वो खाना लेकर हिरा जाते हैं, गारे हिरा। तो जब खाना खत्म होने का ख्याल आता है तो खदीजा गरम गरम खाना तैयार करके मेरे नबी को पहुंचाने जाती है। जो लोग गारे हिरा चढ़े जानते हैं कि जनाब अम्मी जान खदीजा की कुर्बानी कितनी है, कि खाना ले जाने के लिए चढ़ती है, उतरती है। भाइयों, जिस वक्त पहली मर्तबा में गारे हिरा पे चढ़ा था, उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 21 साल की, 20 से 21 साल की रही होगी। और उस वक्त आदमी बिल्कुल ताकतवर कड़ियल जवान होता, उस वक्त जिस्म इतना भारी भी नहीं था। लेकिन जब गारे हिरा पे हम लोग चढ़े हैं तो पूरा दिन उसके बाद उम्रा और तवाफ करने की हिम्मत नहीं रही। ये हालत थी, हरम में जाने की हिम्मत नहीं थी। हालांकि हमारा रूम बिल्कुल हरम के सामने था, ये 2003 की बात है। ये हालात थे, लेकिन अम्मी जान खदीजा रोजाना खाना लेकर, गरम खाना लेकर, हालांकि हुजूर अलैहिस्सलाम जैसे गरम खाना जिससे धुआं निकले वो नहीं खाते थे, लेकिन ताजा गरम खाना लेकर हुजूर के लिए ऊपर चढ़ती थी। गरम से मुराद इतना गरम नहीं कि जिससे धुआं निकले। यूं भी खाना पकने के बाद गारे हिरा तक जाएगा तो वो ऐसा गरम कहां रह जाएगा, क्योंकि मक्के से कुछ किलोमीटर दूर पर है। पैदल जाती थी, पैदल चढ़ती थी, ऊपर हुजूर तक खाना पहुंचाती थी। ये कुर्बानियां थी जनाब खदीजा की। और जब हुजूर अलैहिस्सलाम पर पहली वही नाजिल हुई, पहली वही, तो उस वक्त हुजूर आए और कहा, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ, मुझे अपनी जान का खतरा लगता है। उस वक्त तसल्ली देने वाली माँ खदीजा थी। कहती थी, हुजूर मेरे सरताज आपको कुछ नहीं होगा। हुजूर ने फरमाया, मुझे मेरी जान का खतरा लगता है खदीजा। तो जनाब खदीजा कहती, हुजूर आपको कुछ नहीं होगा। इसलिए कुछ नहीं होगा कि आप बेवाओं का ख्याल रखते हैं, आप यतीमों की मदद करते हैं, आप मोहताजों को सहारा देते हैं, आप भूखों को खाना खिलाते हैं, आप रिश्तेदारों का हक अदा करते हैं। जनाब खदीजा तसल्लियां दे रही है। और उसके बाद वर्का बिन नौफल के पास ले गई और कहने लगी कि देखो ये क्या कहते हैं। तो वर्का बिन नौफल ने सुना कि एक फरिश्ता आया और उसने ये पढ़ा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, वो जो सारी आयतें हैं, 5 आयतें। तो जब हुजूर ने पढ़ करके सुनाया तो वर्का बिन नौफल ने कहा, मुबारक हो, ये वही फरिश्ता है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आया था, मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया था, आप अल्लाह के नबी हैं। अब यहां लोग बहुत शोर शराबा करते हैं। देखो
हुजूर पर पहली ही वही नाजिल हुई तो हुजूर को मालूम नहीं था कि हुजूर अल्लाह के नबी है। पागलों, ये सारी दास्तान तो मैं पेश कर चुका। नस्तूरा कह रहा है नबी है, खदीजा को मालूम है नबी है, फिर हुजूर को क्यों नहीं मालूम कि नबी है? आका को क्यों नहीं मालूम कि नबी? दुश्मनी करने के लिए तुम्हें अल्लाह का नबी ही मिला था, ऐब निकालने के लिए तुम्हें अल्लाह का नबी मिला था। अरे मैसरा कहता है कि मोहम्मद में कोई ऐब नहीं है, वो काफिर होके कहता है कोई ऐब नहीं, तुम कलमा पढ़ के ऐब निकालते हो। फिर वर्का बिन नौफल के पास क्यों गए? हुजूर क्यों गए? हुजूर खुद ही कह देते अल्लाह का नबी हूं। वर्का बिन नौफल के पास जाने में हिकमत क्या थी? अल्लाह के हर काम में हिकमत है, रसूल के हर काम में हिकमत है। अल्लाह बताना चाहता है कि इब्राहिम ने खुद से कहा मैं नबी हूं, इस्माइल ने खुद से कहा मैं नबी हूं, मूसा ने खुद से कहा मैं नबी हूं, नूह ने खुद से कहा मैं नबी हूं, दाऊद ने खुद से कहा मैं नबी हूं, यूसुफ ने खुद से कहा मैं नबी हूं, शीश ने खुद से कहा मैं नबी हूं, ईसा ने खुद से कहा मैं नबी हूं, सुलेमान ने खुद से कहा मैं नबी हूं, दाऊद ने खुद से कहा मैं नबी हूं। हबीब तू मेरा महबूब है, तू नहीं कहेगा, तू चुप रहेगा, दूसरे से कहलाऊंगा कि तू नबी है। वो और थे, तू और है, सब कहेंगे मैं नबी हूं, तेरी नबूवत के लिए दूसरे कहेंगे तू नबी है, ताकि दुनिया को पता चल जाए महबूब को ऐसी शान वाला बनाया। हबीब को कहना नहीं पड़ा, दूसरों ने कहा ये नबी है। ये हिकमत थी। इस तरह की हिकमतें जानो और अपने नबी की शान समझो। अब अम्मा खदीजा की क्या क्या मैं तारीफ अर्ज करूं, मेरे पास वक्त हो तो कई रातें चाहिए। माँ खदीजा की कुर्बानियां, हुजूर को मारा जाता, हुजूर के सर फट जाते तो माँ खदीजा अपना दुपट्टा बांध देती, अपना दुपट्टा फाड़ के बांध देती। हुजूर को दौलत की जरूरत पड़ती तो अपना माल दे देती, लीजिए हुजूर पूरा माल कुर्बान कर दें। पहले ही दिन तो मालिक बना दिया था, अल्लाह अकबर, लेकिन माल देती। तिजारत का आने वाला सारा माल हुजूर के कदमों में कुर्बान करती। हत्ता कि फिर एक दिन वो आया, आप दास्तान तो ये सुनी चुके हैं लेकिन इख्तिताम पे कह दूं, एक दिन वो आया कि यही 10वीं रमजानुल मुबारक की शब थी, अभी रोजे फर्ज नहीं हुए थे कि माँ खदीजा की आंख में आंसू थे। हुजूर अलैहिस्सलाम को पास में बुला के बिठाया, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि हुजूर ऐलान नबूवत अब कर चुके हैं। आकाए करीम इतनी मोहब्बत करते थे अम्मा खदीजा से, इतनी मोहब्बत करते थे कि उनकी मौजूदगी में हुजूर ने दूसरा निकाह नहीं किया। माँ आयशा फरमाती हैं कि हुजूर अगर सबसे ज्यादा किसी की तारीफ करते तो खदीजा की करते, बल्कि जब कभी बकरी ज़बा करते तो बकरी का गोश्त पहले खदीजा की सहेलियों के यहाँ भेजते, ये खदीजा की सहेली को ले जाकर दे दो, खदीजा की सहेली को ले जाकर, जनाबे खदीजा के नाम पे हुजूर गोश्त तकसीम करते। अब अगर कोई मुझसे पूछे ना कि बुजुर्गों के नाम पे गोश्त, सालन और खाना और शिरनी तकसीम करना कहां से साबित है, तो मैं कहूंगा बुखारी की हदीस से साबित है। नबी ने बकरी ज़िबा करके खदीजा के नाम पे गोश्त तकसीम किया। अगर हम लड्डू तकसीम करें तो इसमें जुर्म क्या है? मिठाई तकसीम, हुजूर, बुखारी की हदीस है, मैं नहीं कह रहा, बुखारी की हदीस। हुजूर अलैहिस्सलाम खदीजा के नाम पे तकसीम कर दे, खदीजा की सहेलियों को दे दो। एक दिन मैंने कहा, माँ आयशा, अम्मी जान आयशा कहती, एक दिन मैंने कहा हुजूर आपको एक से एक औरतें मिली, लेकिन आप जब देखो जब वो सुर्ख गालों वाली बुढ़िया का जिक्र करते रहते हैं, जबकि खदीजा तो बूढ़ी थी और आपको अल्लाह ने एक से एक बीबियां दे दी। माँ आयशा कहती है जैसी हुजूर ने सुना, हुजूर गुस्से में आ गए, जलाल में आ गए और फरमाया आयशा, अल्लाह ने खदीजा से बेहतर मुझे बीवी नहीं दी है, मेरी कोई बीवी खदीजा से बेहतर नहीं। जब लोगों ने कुफ्र किया तो खदीजा मुझ पे ईमान लाई, लोगों ने मुझे महरूम रखा तो खदीजा ने अपने माल से मेरी खिदमत की, लोगों ने मुझे झुटलाया, खदीजा ने मेरी तस्दीक की, खदीजा ने कदम कदम पर मेरा सहारा बनी। और आकाए करीम उस एक जुमले पर मां आयशा से 1 महीने तक नाराज रहे और इतने जलाल में थे कि मां आयशा कहती थी, मैं अल्लाह से दुआ करती थी, अल्लाह हुजूर का जलाल ठंडा कर दे, कहीं मेरी मुजम्मत में कुरान में कोई आयत नाजिल ना हो जाए। हुजूर इतने जलाल में थे
اور اس کے بعد میں نے عہد کر لیا کہ آج کے بعد کبھی جناب خدیجہ کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گی. اتنا حضور چاہتے تھے امی جان خدیجہ کو, کیوں قربانیاں اتنی تھی, حضور کے لیے سب قربان کیا. اور وہ واقعہ جو ہر سال آپ سنتے ہیں وہ بھی سن کر ایمان تازہ کرے اور اختتام پہ پہنچے کہ جناب خدیجہ حضور کو بلا کر بٹھاتی ہے, کہتی ہے یا رسول اللہ میری 4 بیٹیاں ہیں, چاروں مجھے عزیز ہے, زینب, رقیہ, ام کلثوم اور فاطمہ, چاروں عزیز ہے, لیکن میری بیٹی فاطمہ مجھے بہت عزیز ہے. میری بیٹی فاطمہ کا خیال کرنا. اور حضور یہ کچھ پیسے اور کچھ امانتیں ہیں, یہ میری بیٹیوں میں فاطمہ کی جب شادی کرنا تو یہ تحفہ میری طرف سے میری بیٹی فاطمہ کو دے دینا. یہ وصیت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ فاطمہ کبھی کچھ مانگے تو نہ کہنا, اس کو کبھی محروم نہ کرنا. میری بیٹی سب سے چھوٹی ہے. اس وقت سیدہ فاطمہ کی عمر بہت کم تھی اور اماں خدیجہ دنیا سے کوچ کر رہی تھی. حضور کو وصیت ہو گئی, بات چیت ہو گئی. ماں خدیجہ کے چہرے کی رنگت دیکھ کے حضور نے فرمایا خدیجہ مبارک ہو تجھے, اللہ تجھے وہ محل دے گا میری خدمت کے عوض جس میں کوئی شور نہیں ہوگا, وہ موتیوں کا محل ہوگا. خدیجہ جب تو جنت میں جانا تو اپنی 3 سوکنوں کو میرا سلام کہنا, کیونکہ شب معراج اللہ نے ان کے ساتھ میرا نکاح کر دیا ہے, ایک مریم سے, ایک آسیہ سے, اور ایک روایت میں آیا ہے کہ جناب سارہ کا بھی نام ہے, لیکن اس پر اختلاف کیا گیا. یہ سارہ کون ہے اس سلسلے میں اختلاف ہے. تو ماں خدیجہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کہتی ہے کہ وہ میری سوکنے نہیں ہیں, وہ میری بہنیں ہیں. وہ میری سوکنے نہیں ہیں, وہ میری بہنیں ہیں. ٹھیک ہے میں سلام کہہ دوں گی. تو جناب فاطمہ چھوٹی سی تھی, اپنے ابا کی گود میں گئی, کہا ابا جان آپ نے خدیجہ کو کبھی ناراض نہیں کیا, آج یہ جملے کہہ کر آپ نے خدیجہ کو ناراض کیوں کیا؟ حضور نے فرمایا میں نے ناراض نہیں کیا, اس کی سوکنوں کا ذکر میں نے صرف اس لیے کر دیا کہ خدیجہ کے نام اعمال میں ہر چیز کا ذکر تھا, ہر نیکی لکھی ہوئی تھی, لیکن جہاد کی نیکی نہیں تھی. جہاد کی نیکی خدیجہ کے نام اعمال میں نہیں تھی. اور جو عورت سوکن پر صبر کرتی ہے اللہ اس کو جہاد کا ثواب عطا کرتا ہے. تو میں نے چاہا کہ جب خدیجہ کے نام اعمال میں ہر نیکی ہے لیکن جہاد کی نیکی نہیں, تو اس کے سامنے اس کی سوکن کا ذکر کر کے میں خدیجہ کے اعمال میں جہاد کا ثواب بھی لکھوا دوں, ورنہ میں اس کا دل کب دکھاتا. حالانکہ ابھی اور عورتوں سے کسی سے نکاح ہی نہیں ہوا ہے, لیکن ذکر پر بھی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا کی آنکھ میں آنسو آ گئے. بس پھر حضور چلے گئے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور گفتگویں لگی. رات ہے آج خدیجہ کے گھر کی, رات ہے خدیجہ کے گھر کی. وہ خدیجہ جو ملکہ عرب تھی, وہ خدیجہ جس کے گھر میں سچے موتی ہوا کرتے تھے, وہ خدیجہ جو سونے کا ڈھیر لگا دے تو بقول ابو بکر صدیق کے سامنے والا انسان نظر نہیں آتا تھا, لیکن خدیجہ دین پر اپنا مال خرچ کرتے 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 اس منزل پر پہنچ گئی کہ آج خدیجہ کی زندگی کا آخری رات ہے خدیجہ کی زندگی کی, اور گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل تک نہیں. خدیجہ کے گھر میں تیل تک نہیں ہے, گھر میں فاقہ کشی ہے. خدیجہ فاقے سے ہے, بیمار ہے. وہ خدیجہ جس کے دسترخوان پر سینکڑوں لوگ کھاتے تھے, آج اس خدیجہ نے دین پر, مصطفیٰ کریم پر اتنا لٹا چکی ہے کہ کچھ نہیں ہے. اس امت کو احساس نہیں ہے کہ دین یوں ہی نہیں پھیلا. کسی نے خون دیا ہے, کسی نے دولت لگائی ہے, کسی نے پتھر کھائے ہیں, کوئی قیدی بنا ہے, کسی نے جہاد میں اپنے کلیجے کے ٹکڑے کروائے ہیں, تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا ہے. آج خدیجہ کے گھر کی آخری شب ہے, غالباً یہ وہی شب ہے. خدیجہ کے گھر میں چراغ جلانے تیل نہیں. خدیجہ فاقے سے بیمار ہے, صاحب فراش ہے, بیٹیوں کو حیرت سے تکتی ہے, دیکھتی ہے, آنکھ میں آنسو آتے ہیں. مکہ کے گنڈوں نے, مکہ کے اوباش لوگوں نے جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے.
खदीजा की एक सहेली को तैयार किया है, जाओ, खदीजा आज फाके से है, फाका कशों से ईमान छीनना आसान होता है। खदीजा के घर में अंधेरा है, वो खदीजा जिसके घर में कभी मशालें जलती थी, जिसके घर के अंदर कहीं कहीं मशालों से रात का समा दिन के बराबर हो जाता था, आज उसके घर में अंधेरा है, चिराग जलाने के लिए तेल नहीं है। जाओ, खदीजा आज आसानी के साथ मुर्तद हो सकती है, उसका ईमान आज छीना जा सकता है। सहेली गई, बिस्तर पे बैठ गई, खदीजा मैं तेरी बचपन की सहेली हूं, मैंने कभी तेरे साथ दगा नहीं किया, तेरे साथ प्यार किया, तुझसे मोहब्बत की। खदीजा तुझे मालूम है तू मलके अरब थी, तू मलके तुज्जार थी, आज तू मक्के की फकीर हो चुकी है, तो मक्के की मुफलिस हो चुकी है। आज तेरे पास कुछ नहीं, तेरे घर में जलाने के लिए चिराग में तेल नहीं, आज तू फाके से है। और मक्के के सरदार गुफ्तगू करते हैं कि जब तू इंतकाल कर जाएगी तो मक्के की जमीन में तुझे दफन नहीं होने देंगे। खदीजा, मरने के बाद न तुझे कफन मिलेगा, न मक्के की जमीन पे दफन होने मिलेगा। खदीजा, तूने मोहम्मद का कलमा नादानी से भूल से पढ़ा है, मुझे कह दे कि तूने मोहम्मद का कलमा नादानी से पढ़ा है और तू उसको गलत करार देती है, तू उसका इनकार कर दे। मैं जाकर मक्के के सरदारों के पास गवाही दूंगी, तेरा जनाजा शान से उठेगा जैसे मक्के के सरदारों से उठता है। अभी तेरे घर में मशालें जलेगी और रात का समा दिन में तब्दील हो जाएगा, तेरे भूखे पेट को ग़िज़ा मिल जाएगी। खदीजा, कह दे कि तूने मोहम्मद का कलमा नादानी से पढ़ा है। खदीजा लेटी थी, पूरी ताकत इकट्ठा करती है, उठकर बैठ जाती है, कहती है मेरी सहेली, तू ये कहती है कि मैंने मोहम्मद का कलमा नादानी से पढ़ा है? नहीं, मैंने मोहम्मद का कलमा नादानी से नहीं पढ़ा, करोड़ों बार, हजारों बार, लाखों बार अक्लो खिरत ने मेरे तलवों को बोसा दिया था, उसके बाद मैंने मोहम्मद का कलमा पढ़ा। मैंने मोहम्मद को शौहर समझकर नबी नहीं माना, मैंने देखा वो कभी झूठ नहीं बोलते, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, उन्होंने कभी गीबत नहीं की, उन्होंने किसी का दिल नहीं दुखाया। तब कहीं जाकर मैंने उनका किरदार देखकर मोहम्मद का कलमा पढ़ा है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, वो दम बखुद थी। ऐसे में मेरे हुजूर आ गए, आका आ गए, रात का वक्त है, मक्के के लोग तकिया लगाए हुए हरम के सैन में बैठे, हुजूर आ गए। हुजूर ने खदीजा के सर पे हाथ रखा। जब मैं इन लम्हात को याद करता हूं तो मुझे आज की रात आती, आज ही की रात थी, 10वीं शब थी रमजानुल मुबारक की। मेरे आका ने अपनी बीवी, वो बीवी जिसने कदम कदम पे हुजूर को सहारा दिया, हुजूर को तसल्लियां दी। पता है जब हुजूर पत्थर खा के आते और घर में सर पकड़ के बैठ जाते, हुजूर कहते हैं ये लोग मेरी बात नहीं मानते। आका कहते हैं मुझे पत्थर मारते हैं, मैं इन्हें जन्नत की दावत देता हूं। तो उस वक्त खदीजा थी, कहती थी हुजूर आप हिम्मत न हारे, आप हक पर हैं, अल्लाह आपके दीन को गलबा अता करेगा। अक्सर ये तसल्लियां माए देती है, माए, लेकिन मां तो 6 साल की उम्र में दुनिया से कूच कर गई थी। अल्लाह ने बड़ी उम्र की बीवी मेरे नबी को इसलिए अता की थी ताकि वो तसल्ली दे सके, अपने तजर्बात पेश कर सके। मां खदीजा सहारा देती हैं, तसल्लियां देती है। मेरे आका को वो लम्हे याद आते हैं। आज खदीजा अपने अल्लाह से मिलने वाली है, रफीक आला से मिलने वाली है, हुजूर का साथ छूटने वाला है। मुशफिको मेहरबान मेरे नबी की बीवी दुनिया से कूच करने वाली है। आका सर पे हाथ रख के कहते खदीजा कैसी हो? खदीजा क्या हाल है? सहेली बैठी है, बच्चियां हैं, फातिमा अपनी अम्मी का मुंह तकती है, ज़ैनब अपनी मां का चेहरा देखती है। अल्लाह अकबर, मेरे आका सर पे हाथ रख के अपनी बीवी से, हम सब की अम्मी जान से पूछते खदीजा कैसी हो? खदीजा कहती या रसूल अल्लाह, आप मुझे अल्लाह पे छोड़ दे, आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात है, हुजूर मुझे अल्लाह पे छोड़ दे, आप मेरी खैरियत न पूछें। जितनी देर तक आप मेरी खैरियत पूछेंगे
आप जाओ अल्लाह के दीन की दावत दो, अल्लाह के दीन की तबलीग करो। जितनी देर तक आप मेरी खैरियत पूछेंगे, अगर उतनी देर आप दीन की तबलीग करेंगे तो न जाने कितने काफिरों को आप कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना देंगे। हुजूर आप जाएं। हुजूर वापस लौट गए। जो सैली बहकाने वरगलाने आई थी, खदीजा के हाथ पकड़ते कहते, खदीजा मुझे भी कलमा पढ़ाओ और मुसलमान बना दो। माँ खदीजा कहती है, क्यों? तुम तो मुझे वरगलाने आई थी, तुम तो मुझे काफिर बनाने आई थी, तुम क्यों मुसलमान हो रही हो? तो सहेली कहती है, खदीजा जो दीन अपने मानने वालों को इतना यकीन अता करता हो, वो मजहब झूठा नहीं हो सकता, वो मजहब सच्चा है। खदीजा कहती है, सुन ले मेरी सहेली, अगर ये काफिर मुझे मक्के में दफन नहीं होने देंगे, अल्लाह के फरिश्ते मेरे जनाजे को कांधा देंगे और मैं जमीन गैरत में दफन की जाऊंगी। ये कहती है, कलमा पढ़ाती है और उसके बाद जनाब खदीजा दुनिया से कूच कर जाती है। मेरे हुजूर कांधा देते हैं पूरी कायनात की सबसे पहली माँ को, उम्मुल मोमिनीन को। आंख में आंसू जारी है। कोई कहता है, हुजूर आप रो रहे हैं? कहते हैं, मेरा सहारा जा रहा है। वो नबी जो पूरी कायनात का सहारा था, वो नबी अपने सहारे को अपने कांधे पे ले जा रहे हैं। उसके बाद आपको पता है, अल्लाह के हबीब उस कब्र में खुद उतरते हैं। खदीजा, अभी जनाजे की नमाज का हुक्म नहीं आया है, आका खुद कब्र में उतरते हैं। माँ खदीजा को अपने हाथ से लिटाते हैं और कब्र से कहते हैं, कब्र खबरदार, ये खदीजा है, ये खुद मेरा सहारा थी, इस पे रहमतें हो, इस पे बरकतें हो। और उसके बाद मेरे हुजूर अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए जो है वो मिट्टी डालने का हुक्म देते हैं और खदीजतुल कुबरा की कब्र बना दी जाती है। हैरत है मुझे, आज भी जनाब खदीजा के मजार पे जाओ तो ये लम्हात याद आते हैं। जब भी मैं जाता हूँ तो खड़े होकर के यही तसव्वुर करता हूँ कि ये मेरी माँ खदीजा कभी हुजूर को तसल्ली दे रही है, कभी अपना दुपट्टा जख्मों पे बांध रही है, कभी हुजूर की हिम्मत बढ़ा रही है, कभी हुजूर को हौसला दे रही है। लेकिन मुझे बहुत अफसोस होता है, उस वक्त तो दिल बहुत रोता है कि वो खदीजा जिसने इस्लाम पे इतना एहसान किया, जो मोहसिना इस्लाम थी, जो मोहसिना कायनात थी, जिस खदीजा को खुदा ने सलाम भेजा है, जिस खदीजा के एहसानात हुजूर ने बयान किए हैं, उस खदीजा के मजार पे गुंबद बनाया गया था, सऊदी हुकूमत ने उसको बिल्डोजर से शहीद कर दिया। जनाब खदीजा की कब्र पे बिल्डोजर चलाया। ये हालात है। अल्लाह हमारी अम्मी जान पे रहमतें फरमाए। उनके वसीले से जब भी दुआ की जाती है, अल्लाह दुआ कबूल करता। आइए उस हमारी माँ पर जिसके बहुत एहसान